امریکہ کو ایران کے سامنے جھکنا پڑا ہے۔ تاریخ میں پہلے مرتبہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، امریکہ جس ملک پر جیسے چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے، امریکہ دنیا کے ہر ایک ملک کے نظام میں مداخلت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، لیکن ایران واحد دنیا کا اس وقت ایسا ملک ہے جس کے سامنے امریکہ کو جھکنا پڑا ہے۔ امریکہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لب و لہجہ بدل گیا ہے۔ 15 دن پہلے تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایران میں رجیم کو چینج کر دیں گے، اپنی مرضی کا لیڈر وہاں بنائیں گے، وہاں کے تمام اسلام پسندوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت اچھی ہو رہی ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ ایران ابھی سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے، بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران اپنی مرضی سے اور اپنی شرطوں کے ساتھ اس جنگ کو ختم کرے گا، امریکہ کے کہنے سے اس جنگ کا ختم نہیں ہوگا۔ اور امریکہ کو پاکستان سے مدد کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، ترکی سے امریکہ مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، یا ایجپٹ سے امریکہ مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، عمان سے بار بار گزارش کر رہا ہے کہ تمہارا ایران کے ساتھ اچھا رشتہ ہے، تم ایران کے ساتھ بات چیت کرو۔ اور ایران نے امریکہ کو جو جھکنے پر مجبور کیا ہے، ایران نے امریکہ کو جو اس کی اوقات بتا دی ہے، امریکہ کی جو دادا گیری ایران نے نکال دی ہے اور جس کو پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، وہ ہے اسٹیٹ آف ہرمز۔ یہی اسٹیٹ آف ہرمز ہے جس کی وجہ سے ایران نے امریکہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز پورا ایران کا ہے، ایران نے اس کو بند کر دیا تو اس جنگ کا اثر پوری دنیا پر پڑنے لگا۔ بھارت پر اثر پڑ رہا ہے، یورپ کے دیشوں پر اثر پڑ رہا ہے، ویسٹ ایشیا کے دیشوں پر اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ بھارت ہو، پاکستان ہو، چین ہو یا سری لنکا ہو، ان جیسے ممالک میں تیل اور گیس تقریباً 50 سے 60% اسی ابنائے ہرمز سے آتا ہے۔ یورپ کے دیشوں میں بھی تقریباً 30 سے 40% تیل اور گیس اسی ابنائے ہرمز سے جاتا ہے۔ امریکہ تک گیس یہیں سے جاتا ہے۔ ابنائے ہرمز کے بند ہونے کا اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے، اور امریکہ نے پوری کوشش کی ابنائے ہرمز کو اوپن کرانے کی، لیکن امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور جب یورپین یونین نے، بھارت نے اور بھی کئی دیشوں نے دیکھ لیا کہ امریکہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو اوپن کرا دے، تو ان دیشوں نے خود ہی ایران سے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ کی دھمکی کے باوجود یہ ممالک امریکہ کی طرف سے جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، اور اب امریکہ بھی اوقات پر آ گیا ہے۔ امریکہ بات چیت کا راستہ چن چکا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی بات چیت نہیں کریں گے۔ اب یہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے کیا، اتنا اہم کیوں ہے، اور کن ملکوں میں کتنا آئل اور گیس یہاں سے جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، اس ویڈیو میں تفصیل سے اس کو جانیں گے، سمجھیں گے۔ اب دیکھیں کہ جو آپ کو پتلا سا یہ راستہ دکھ رہا ہے، یہ ہے اسٹیٹ آف ہرمز، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ادھر سمندر ہے یہ پرشین گلف ہے، یا اسی کو عربین گلف کہا جاتا ہے، کھاری اسی کو کہا جاتا ہے، بہت گہرا سمندر ہے۔ اور اس کے بعد یہ گلف آف عمان ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے، اور گلف آف عمان کے آنے کے بعد ادھر انڈین سی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اس سائیڈ میں بحر احمر شروع ہو جاتا ہے جس کو ریڈ سی ہم کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے یورپ کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو پرشین گلف ہے، یہاں پر بحرین ہے، اس کے اس کنارے، یہاں پر قطر ہے، یہ متحدہ عرب امارات ہے، ادھر سعودی عربیہ ہے، یہاں پر کویت ہے، اور ادھر عراق ہے جس میپ میں نہیں دکھ رہا، آگے میں آپ کو دکھاؤں گا، اور یہ ایران ہے، ادھر آپ کو بتا دیں یہ عمان ہے۔ اب پرشین گلف میں کوئی بھی جہاز اگر آئے گا تو وہ اسی اسٹیٹ آف ہرمز سے گزر کر جائے گا، اور اسٹیٹ آف ہرمز پورا کا پورا کس کا ہے، ایران اور عمان کا ہے۔ کیسے ایران اور عمان کا ہے اس کو سمجھیے، کیونکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ سمندر کا کچھ حصہ جس ملک سے سمندر ملا ہوا ہے اس کا مانا جائے گا، اور کچھ علاقہ، کچھ حصہ انٹرنیشنل واٹر کہلائے گا۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ وہ انٹرنیشنل واٹر کا ایریا تھا، اس ملک کا حصہ نہیں تھا۔ اب انہی لوگوں نے ایک نظام بنا رکھا ہے، انٹرنیشنل لا بنا رکھا ہے کہ ملک کی سرحد سے 24 کلومیٹر تک کا جو سمندری علاقہ ہوگا وہ اس ملک کا اپنا ہوگا، اس کے بعد وہ انٹرنیشنل واٹر مانا جائے گا۔ 24 کلومیٹر سے کم کا جو علاقہ ہوگا تو وہ انٹرنیشنل واٹر نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر یہ جو پرشین گلف ہے اور یہ گلف آف عمان ہے، آپس میں مل جاتے ہیں، اور یہ جو علاقہ ہے یہ ایران ہے اور یہ عمان ہے، ان دونوں کے بیچ میں صرف 24 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب اس اسٹیٹ آف ہرمز کا 12 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ ایران کا ہوگا، اور جو 12 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ کس کا ہوگا،
ओमान का होगा। तो इन्हीं दोनों मुल्कों के दरमियान ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है। अब कोई भी जहाज़ यहाँ से अगर गुजरना चाहेगा तो गुजर सकता है। अब चाहे तो वो ईरान वाला जो इलाका है, जो हुर्मुज़ ईरान से मिला हुआ है, उससे भी गुजर सकता है, और जो ओमान से मिला हुआ है उससे भी गुजर सकता है। अब एक सवाल लोगों के दिलों में पैदा हो रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ अकेले ईरान का नहीं है, ओमान का भी है। तो अगर ईरान अपने इलाके से गुजरने नहीं दे रहा है तो ओमान की साइड से तो जहाज़ यहाँ से गुजर सकता है, शिप इस रास्ते के ज़रिए जा सकती है। फिर ऐसा क्यों कि ईरान की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं जा सकता? और ओमान का अगर इलाका है तो ओमान के इलाके पर ईरान हमला भी नहीं कर सकता, क्योंकि ओमान और ईरान में रिश्ते अच्छे हैं। इस जंग में जीसीसी का वाहिद मुल्क ओमान है जो ईरान को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। तो उसकी वजह यह है कि ईरान की साइड जो ये इलाका है हुर्मुज़ का, वहाँ पर डेप्थ है, गहराई है पानी में, और ओमान के साइड जो यहाँ पर समुद्री इलाका है वहाँ पर डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है। और जहाज़ के गुज़रने के लिए, शिप के गुज़रने के लिए डेप्थ चाहिए, गहराई चाहिए। तो इसी वजह से ईरान वाला जो इलाका है ज़्यादा अहम है। ईरान की तरफ से या दुनिया भर के मीडिया में कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया है। बंद करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा लगा दिया गया है या कोई गेट लगा दिया गया है या कोई जंजीर लगा दी गई है कि ये दरवाज़ा बंद है, इसके ज़रिए जहाज़ नहीं गुज़र सकता, बल्कि ये ओपन है, यहाँ से कोई भी जहाज़ गुज़र सकता है। लेकिन ईरान ने धमकी दी है कि हमारे इलाके से कोई जहाज़ गुज़रेगा हमारी परमिशन के बग़ैर, और अमेरिका, इसराइल या उनके अलाइज से उन जहाज़ों का ताल्लुक़ होगा तो हम उस पर हमला कर देंगे। सिक्योरिटी की वजह से या तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से जहाज़ यहाँ से गुज़रने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कंपनियाँ अपने जहाज़ों को नहीं भेज रही है। जिन मुल्कों को लगता है या जिन मुल्कों के बारे में ईरान ने कह रखा है कि उन मुल्कों का अगर झंडा शिप पर लगा होगा उस पर हमला नहीं करेंगे, तो फिर वो जहाज़ यहाँ से गुज़र रहे हैं और उन पर कोई हमला नहीं हो रहा है। तो ये पूरा क़ज़िया है। अब अमेरिका या अमेरिका के जो अलाइज़ हैं वो अपने जहाज़ों को यहाँ से नहीं भेज पा रहे हैं। ख़ुद भारत का तकरीबन 21 या 22 जहाज़ अभी भी पर्शियन गल्फ़ में फंसा हुआ है, क्योंकि अगर गुज़रेगा तो ईरान हमला कर सकता है। जब ईरान की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि ईरान का कोई जहाज़ गुज़र सकता है, फिर वो जहाज़ गुज़र जाता है और उस पर हमला नहीं होता। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो समझिए। पर्शियन गल्फ़ के साइड में पूरा ईरान है और इधर खलीजी ममालिक है। ये मुत्तहिदा अरब इमारात है, ये यहाँ पर कतर है, ये बहरैन है छोटा सा मिला हुआ, उसके बाद इधर आगे कुवैत और इराक़ है। अब इराक़ में, कुवैत में, सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में कोई भी चीज़ अगर आनी है या यहाँ से कोई भी चीज़ जानी है तो वो पर्शियन गल्फ़ के ज़रिए ही होगा। कतर की जो सरहद, कतर के पास जो समुद्री हुदूद है वो पर्शियन गल्फ़ का है। उसके अलावा कतर यहाँ सऊदी अरब से मिला हुआ है। तो अगर समंदर से शिप के ज़रिए कतर में कोई चीज़ आनी है तो वो पर्शियन गल्फ़ के ज़रिए आएगी और वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुज़र कर जाएगा। बहरैन में अगर कुछ आना है तो वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए जाएगा। इराक़ में या कुवैत में कुछ जाना है तो वो इसी के ज़रिए जाएगा। यूएई का भी यही मामला है, अगर यहाँ कुछ आना है, यहाँ से कुछ जाना है तो वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ही ज़रिए जाएगा। हाँ, ओमान के ज़रिए भी यूएई में कुछ जा सकता है, क्योंकि ओमान और यूएई की सरहदें मिली हुई है। या फिर इन देशों में सऊदी अरब के ज़रिए, रोड के ज़रिए आएगा। सऊदी अरब 2 समंदरों से मिलता है। सऊदी अरब के इस तरफ अगर पर्शियन गल्फ़ है तो उस तरफ सऊदी अरब में रेड सी है, जैसे जद्दा का जो इलाका है या मदीना मुनव्वरा का जो इलाका है तो उसके नज़दीक बहर अहमर है, और रेड सी यमन से होता हुआ गुज़रता है, फिर वो इंडियन सी में मिलता है या मेडिटेरियन सी में मिलता है, यूरोप की तरफ जाता है। तो सऊदी अरब के पास ऑप्शन है अपने सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का दूसरे समंदर के ज़रिए, लेकिन इन देशों के पास नहीं है। अब बहरैन, कतर या यूएई से अगर ऑयल जाता है, गैस जाता है, खाद जाता है, कुछ और जाता है तो इसी के ज़रिए जाएगा। यहाँ कुछ आता है तो इसी के ज़रिए आएगा। इसीलिए ये ममालिक बुरी तरह फंस गए हैं। ओमान के पास ऑप्शन है कि ओमान ये है तो ओमान इधर से भी भेज सकता है और ईरान की वहाँ पर मुदाखलत नहीं होगी। अब ज़रा समझिए इस वीडियो में कि किस मुल्क में कितना यहाँ से आता है, कितना जाता है। अब देखिए, जापान है। जापान दुनिया का बहुत ही पीसफुल मुल्क माना जाता है, मालदार मुल्क माना जाता है। जापान और अमेरिका के अच्छे दिफाई माहदे भी हैं, लेकिन जापान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब जापान में जो ऑयल है वो 85 से 90% स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से जाता है, यानी गल्फ़ के देशों से ही तकरीबन 90% ऑयल जो है वो जापान एक्सपोर्ट वहाँ से इंपोर्ट करता है। खा वो सऊदी अरब हो, कतर हो या दूसरा देश हो। ईरान तो उसमें नहीं होगा क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है, तो अमेरिका का अलाई है जापान, तो ईरान से तेल ख़रीद नहीं सकता। तो 90% जो तेल है वो
जापान को स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से जाता है। इसी तरह जो LNG यानी गैस है वो भी 90% जापान को स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से जाता है। अब जापान की जो हालत है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अमेरिका ने जापान से कहा कि तुम्हारा पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से आता है, हमारे साथ इस जंग में शरीक हो जाओ, मिलकर हमला करो, हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कराते हैं। जापान ने अमेरिकी सदर ट्रंप से कहा कि नहीं, आप जाइए, इस जंग को अपने तौर पर अंजाम दीजिए, मैं ईरान के साथ डायरेक्ट बातचीत करूंगा। और ख़बर है कि जापान और ईरान में बातचीत हुई है और ईरान ने जापान को अलाउ कर दिया है, क्योंकि अगर जापान को अलाउ ईरान नहीं करेगा तो फिर जापान अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा क्राइसिस और बहरान का शिकार हो जाएगा। जापान के पास यकीनन कुछ दिनों का ज़ख़ीरा होगा, लेकिन इतना लंबा नहीं, इसलिए जापान को ईरान से डायरेक्ट बातचीत करनी पड़ी है। जापान ने भी ईरान की कुछ शर्तें मान ली है और अब जापान के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर दिया गया है। उसके बाद अब चीन को देख लीजिए। चीन भी वेस्ट एशिया का मुल्क है, बड़ा अहम मुल्क है, और चीन में जो ऑयल आता है वो तकरीबन 40 से 50% इसी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए। उसके अलावा जो गैस आता है LNG चीन में वो भी 30 से 40% इसी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए। एक और डेटा जान लीजिए कि चीन सबसे ज़्यादा तेल ईरान से लेता है और तकरीबन ईरान से चीन अपनी ज़रूरत का 90% तेल लेता है, और चीन उसके बदले में ईरान को दूसरी चीज़ें देता है। ईरान के जो नज़दीकी इत्तेहाद इस वक्त उसमें सर फहरिस्त चीन है, रूस को तेल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो चीन सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो ईरान से लेता है। यहाँ पर ये डेटा इसलिए 40 से 50% का है क्योंकि मैंने इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से ये डेटा लिया है, और चीन जो ईरान से तेल ख़रीदता है तो पूरा वो इंटरनेशनल डेटा में नहीं आ पाता, क्योंकि कुछ तेल चीन ईरान से दुनिया को बता कर लेता है ऐलान करके, और उससे ज़्यादा तेल चीन ईरान से दुनिया को बताए बग़ैर लेता है, खामोशी के साथ लेता है, चुपके से लेता है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाता है। तो जो रिकॉर्ड में दर्ज है वो सिर्फ 30 से 40% जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए आता है, लेकिन इससे बड़ा हिस्सा वो है चीन का तेल लेने का, गैस लेने का ईरान से, जो रिकॉर्ड में नहीं है और इसी वजह से वो यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% चीन गैस और तेल दोनों ईरान से ही लेता है और वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से होकर आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंडिया। इंडिया में ख़बरें आ रही है कि गैस की क़िल्लत है, लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, कई फैक्ट्री बंद हो चुकी है। उसके अलावा जो तेल है वो भी बहुत कम हो गया है। कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पेट्रोल या डीजल अवेलेबल नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हुई कि एक फैक्ट्री का मालिक अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, अपने तमाम वर्कर्स को कह रहा है कि जब तक गैस नहीं आता उस वक्त तक दही चूरा खाओ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रा सा देखिए और मज़ा लीजिए। भाई गैस का प्रॉब्लम सबको है, तो भाई देखो अभी क्या है, इमरजेंसी में अगर गैस का प्रॉब्लम हो रहा, नहीं मिल रहा है, तो आप इमरजेंसी में क्या करो, दही चूड़ा खाओ। और एक तो नवरात्रि भी चल रहा है, तो नवरात्रि में कोशिश करो फल फ्रूट खाओ, दही चूड़ा का सेवन करो। मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी 1-2 दिन में हम गैस व्यवस्था कर दे रहे हैं, गैस व्यवस्था हो जा रहा है, बात चल रही है, तो मिल जाएगा तो सबको गैस पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और नवरात्रि चल भी रहा है, ठीक है, का दही जमा दीजिए। अरे दही पैकेट का दही मिल जाएगा, 10 रुपए का मिलता है डब्बा। तो आपने देखा इस वीडियो को, एक मरतबा मुस्कुराइए। उसके बाद देखिए कि इंडिया की क्या सूरत हाल है। भारत में जो तेल है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से 60 से 70% आता है। 70% अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से ऑयल आता है भारत में, और वो अगर अब आना बंद हो चुका है, तो समझिए कि भारत को कितना ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। और भारत के पास कच्चा तेल सिर्फ 25 दिनों का रिज़र्व होता है, और 25 दिन जो है वो रिफाइन शुदा होता है, और इस जंग को 25 दिन हो चुके हैं। तो अब समझिए कि सिर्फ मज़ीद 25 दिन बाकी रह गया है जो भारत में ऑयल चलेगा, खा वो पेट्रोल हो, डीजल हो, मोबिल हो। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कह दिया है कि आपको इस सिचुएशन के लिए, इस सूरत हाल के लिए तैयार रहना है। कोविड की तरह संकट का सामना करना पड़ेगा। सरकार नहीं पॉसिबल बना पा रही है ऑयल या गैस को लाने में। उसके अलावा जो LNG है या LPG है, यह भी 50 से 60% स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए ही भारत में आता है। और ये अभी का डेटा है, पुराना डेटा 88% का था। लेकिन अब भारत सरकार ने रूस से बातचीत की है, और रूस से बातचीत करने के बाद वहाँ से कुछ शिप्स भारत को आ रहे हैं, कुछ और देशों से बातचीत कर रहा है भारत। तब भी 60% जो गैस है वो
स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ही मुनहसर है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं ओपन होगा तो जो क्राइसिस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया भी बहुत अहम देश है और इसका भी अमेरिका के साथ डिफेंस का माहिदा है, दिफाई माहिदा है, और यहाँ 70 से 80% तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए ही आता है, और जो LNG है, जो गैस है, वो भी 80 से 90% वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए आता है, और वो कतर से आता होगा, UAE से आता होगा, सऊदी अरबिया से आता होगा। ईरान से तो साउथ कोरिया अमेरिका के डर की वजह से नहीं लेता होगा, अब इसका भी रास्ता बंद है। उसके बाद इटली, ये यूरोप का मुल्क है, बहुत अहम मुल्क है। इटली में भी तकरीबन 25 से 30% जो कच्चा तेल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए आता है, ख़ाह वो UAE या कतर जहाँ से भी आता हो, उसकी एक अलग तफसील है। इसी तरह जो LNG है यानी गैस, वो भी 20 से 25% इटली में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए ही आता है। और यही वजह है कि इटली की सरकार ने ईरान से रिश्ता बेहतर बनाने की कोशिश की। जब ईरान में एक स्कूल पर अमेरिका ने हमला कर दिया, 150 से ज़्यादा गर्ल्स को, लड़कियों को शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो यूरोप का वाहिद मुल्क है इटली जिसने उस हमले की मजम्मत की और खराजी अक़ीदत पेश किया। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि ईरान के स्कूल पर होने वाले हमले की मैं मजम्मत करती हूँ, उसको मैं कंडम करती हूँ। और यूरोप का वाहिद मुल्क है स्पेन, तो ऑलरेडी ईरान के साथ है। ईरान पर होने वाले अमेरिकी और इजराइल के हमलों की स्पेन ने मजम्मत की है, लेकिन इस मुल्क के अलावा जितने यूरोप के ममालिक है उसमें इटली की प्राइम मिनिस्टर ने स्कूल पर होने वाले हमले की मजम्मत की थी। उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि ये जो ममालिक हैं जो पर्शियन गल्फ़ से मिले हुए हैं और जो अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए, तो कौन सा देश कितना एक्सपोर्ट करता है। अभी तक जो डेटा था वो इंपोर्ट करने वाले देशों का था। तो सऊदी अरबिया सबसे अहम देश है। सऊदी अरबिया में वेनेजुएला के बाद सबसे ज़्यादा कच्चा तेल निकलता है। सऊदी अरब का जो तेल है सबसे कीमती और वैल्यूएबल होता है। गैस भी बड़ी मिक़दार में सऊदी अरब निकालता है, और सऊदी अरब में जो फरावानी है, जो दौलत है, जो पैसा है, उसके पीछे यही तेल है। हालांकि सऊदी अरब के जो मौजूदा फरमा रवा हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो तेल से अपनी मईशत को आज़ाद करना चाहते हैं। विज़न 2030 उनका बड़ा मशहूर भी है। अब सऊदी अरब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए तकरीबन 70 से 80% ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, और गैस भी, LNG भी तकरीबन 70% स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए ही सऊदी अरब पूरी दुनिया को भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। और इसलिए डेटा बहुत अहम है क्योंकि सऊदी अरब 2 सी से मिला हुआ है। एक तरफ पर्शियन गल्फ़ है और दूसरी तरफ रेड सी है। सऊदी अरब अगर रेड सी का इस्तेमाल करे तो उसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मामला यह है कि सऊदी अरब में जो कुदरती ख़जाने हैं, जो ज़ख़ीरे हैं, जहाँ से ऑयल निकलता है, जहाँ से तेल निकलता है, जहाँ गैस निकलता है, तो वो इलाक़ा ज़्यादातर यही है जो पर्शियन गल्फ़ से मिला हुआ है। जो रेड सी से सऊदी अरब का इलाक़ा मिला हुआ है, उधर ज़्यादा कुदरती ख़जाने नहीं पाए जाते हैं, उधर ज़्यादा तेल का कुआं नहीं है। तो इस वजह से सऊदी अरब भी तकरीबन अपना 80% जो तेल है वो पर्शियन गल्फ़ के ज़रिए एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह गैस भी तकरीबन सऊदी अरब 70% इसी के ज़रिए एक्सपोर्ट करता है। अब सऊदी अरब के पास ये ऑप्शन है कि वो रेड सी के ज़रिए अपने ऑयल को, अपने गैस को पूरी दुनिया को भेज सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सऊदी अरब को उसके लिए अपने मुल्क में तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछानी होगी। उसके बाद फिर रेड सी में अपने जहाज़ों को लाना होगा, उसके ज़रिए भेजेगा। रेड सी का जो रूट है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इंडिया में अगर कोई जहाज़ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए 6 दिन में आ जाएगा तो रेड सी की वजह से वो जहाज़ तकरीबन 20 दिन में आएगा। इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है रेड सी से आने में। और ख़ुद सऊदी अरब अगर पाइपलाइन नहीं बिछाता है तो ट्रकों के ज़रिए या कंटेनर के ज़रिए भी लंबा टाइम लेना होगा सऊदी अरब को रेड सी के ज़रिए भेजने में। तो इसलिए सऊदी अरब का भी बड़ा नुकसान हो रहा है एक्सपोर्ट करने में। उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात है। मुत्तहिदा अरब इमारात ओमान से बिल्कुल नज़दीक है। पाइपलाइन के ज़रिए मुत्तहिदा अरब इमारात भी अपनी चीज़ों को भेज सकता है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। UAE फ़िलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 60% तेल पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और 60% गैस भी
यूएई पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो यूएई के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर यूएई का गुजारा नहीं हो सकता। एक और बात कि इन ममालिक सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करते बल्कि यूएई में, कतर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ज़रूरत की तमाम चीज़ें इन देशों में बाहर से जाती है, इंडिया से जाती है, पाकिस्तान से जाती है, तुर्की, मिस्र वगैरह से जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए ही ये चीज़ें वहाँ तक जाती है। अगर ये जंग लंबी चलती रही तो यूएई में, कतर में क्राइसिस पैदा हो जाएगा, खाने की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, दुकानों में बहरान शुरू हो जाएगा। तो इसलिए भी दोनों तरफ से ज़रूरत है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। उसके बाद कतर का देख लीजिए मामला। कतर जो मिडिल ईस्ट का बहुत अहम तरीन मुल्क है, वो मुल्क जो अपना तेल है वो 90% एक्सपोर्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए ही। उसके अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है। थोड़ा बहुत तेल वो पाइपलाइन के ज़रिए या किसी और ज़रिए किसी और मुल्क से भेज पा रहा होगा। उसके बाद जो गैस, एलएनजी और एलपीजी का मामला है वो भी 95 से 100% कतर पर्शियन गल्फ़ के ज़रिए ही भेजता है। कतर का मामला एक और ज़्यादा ख़राब ये है कि कतर की जो सरहद है वो 80% सऊदी अरबिया से मिली हुई है। उसके बाद कतर के पास पर्शियन गल्फ़ है या अरबियन गल्फ़ है। उसके अलावा कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिससे कतर की सरहद मिली हुई हो। सऊदी अरब ने जब पाबंदी लगा दी थी कतर पर तो कतर को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त ईरान ही कतर के सपोर्ट में खड़ा था या तुर्की मदद पहुँचा रहा था, क्योंकि जो ज़मीनी सरहद मिली हुई है कतर की वो सिर्फ सऊदी अरबिया से, किसी और देश से नहीं। और ये डेटा है कतर का कि वो 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, 95% गैस एक्सपोर्ट करता है कतर की वजह से। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद हो जाने की वजह से कतर ने गैस की पैदावार को फ़िलहाल रोक दिया है, तेल की पैदावार को रोक दिया है, क्योंकि स्टोरेज करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। जहाज़ और शिप समंदर में खड़े हुए हैं। उधर ईरान का हमला भी हो रहा है। कतर का जो 17% गैस की फील्ड है वो तबाह हो चुकी है। उसके बाद कुवैत का डेटा देख लीजिए। कुवैत बहुत अहम तरीन मुल्क है, यहाँ भी तेल बहुत ज़्यादा पैदा होता है और कुवैत अपना 90 से 100% जो तेल है वो अपनाए हॉर्मुज़ के ज़रिए ही पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह गैस भी कुवैत जो है 70% अपनाए हॉर्मुज़ के ज़रिए एक्सपोर्ट करता है। थोड़ा बहुत जो गैस है कुवैत का वो इराक़ में जाता होगा या और देशों में जाता होगा। तो ये डेटा है और ये सच्चाई है कि किस तरह पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। उसके बाद यूएसए का भी डेटा देख लीजिए। जो अमेरिका है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए सिर्फ 10% तेल इंपोर्ट करता है, लेता है, या 5% जो है गैस वो अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए जाती है। वजह यह है कि अमेरिका के पास ख़ुद अपना ऑयल है, अमेरिका के पास गैस भी होता है और अमेरिका ने इन देशों से लेकर के ज़ख़ीरा भी कर रखा है। तो अमेरिका पर डायरेक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने का असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के जो अलाइज़ हैं, जिन मुल्कों से अमेरिका का ताल्लुक़ है, उन ममालिक में गैस, तेल ज़्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए जाता है और इसकी वजह से अमेरिका को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वो तमाम ममालिक अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं और इसलिए अमेरिका की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने लगी है। उसके बाद सिंगापुर है। सिंगापुर बहुत अहम तरीन मुल्क है और इस मुल्क में भी जो तेल और गैस आता है उसका डेटा समझिए। 60 से 70% सिंगापुर में जो ऑयल और तेल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए आता है। इसी तरह 40 से 50% जो यहाँ गैस इस्तेमाल होता है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए आता है। तो ये तमाम मुल्कों का डेटा है जो मैंने आपको बताया और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत है, वैल्यू है। और अमरीकी सदर जिनको गुरूर था कि हम किसी के सामने झुक नहीं सकते, कोई हमें नहीं झुका सकता, हम जो चाहेंगे वही होगा, उस अमेरिका को आज झुकना पड़ा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को पढ़िए, लगातार मैं खबरें आपको बताता हूं तो पता चलता है अमेरिकी सदर की बेबसी का, आजिज़ी का। दुनिया का बड़ा बड़ा देश अमेरिका से सवाल नहीं पूछ पाता, अमेरिकी सदर पर एक कमेंट नहीं कर पाता, जो अमेरिका की तरफ से कहा जाता है वही करना पड़ता है। कुछ देशों की मिसालें आप देख सकते हैं, लेकिन ईरान अमेरिका से कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, तुम्हारे कहने से मैं सीज़ फायर नहीं करूंगा, हमारी शर्तें मानो तब सीज़ फायर के लिए इम्कान पैदा हो सकते हैं। और ईरान के पास ये जो ताकत है वो ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की है। सबसे बड़ी ताकत ईमान की है, ईरान की तैयारी की है, लेकिन उससे बड़ी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान ने यहाँ जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पूरा मिसाइल सिटी बना रखा है, आर्मी को लगा रखा है
اور جب بھی کوئی وار شپ آئے گا, کوئی جنگی جہاز آئے گا, گزرنے کی کوشش کرے گا, اس پر جو حملہ ہوگا اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایران کے پاس باضابطہ پنڈبی ہے, جس پنڈبی کا سہارا لے کر کے ایران حملہ کرے گا. دوسرے کئی طرح کے جہاز ہیں. پچھلے دنوں ایران کی IRGC نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جب امریکی صدر نے دھمکی دی تھی کہ اگلے 48 گھنٹے میں اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن نہیں کیا, امریکہ ایران پر ایسا حملہ کرے گا کہ ایران ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا. اور امریکی صدر کی اس دھمکی کے جواب میں ایران نے ایک اینیمیشن ویڈیو جاری کی تھی. اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا تھا کہ اگر امریکہ کا جہاز آتا ہے, کوئی ٹینکر آتا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے, تو ایران کیسے حملہ کرے گا, کیسے امریکہ کو نشانہ بنائے گا. ایران کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے. ایران نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. وہ دراصل ایران کی طاقت کو دیکھ لیا ہے امریکہ نے. وہ ویڈیو پچھلی ویڈیو میں نے دکھایا تھا, یہاں پر بھی آپ ویژول دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو میں اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی.